Bonjour. So children, today we are going to do the exercise of lesson number 2 in book and workbook. I hope you have completed your yesterday's work in your notebook. Okay, and now open page number 24. Okay, in this first question is cauchy la bonne réponse. Take the correct answer. Okay, now in French, children, I already told you that French people don't put a tick mark, they put cross mark in front of the correct answer. Okay, so we will put cross in front of the right answer. So the first question is salut, comment ça va? So answer will be très bien, merci. Sorry, très bien et toi? Or j'habite à Paris. The answer will be très bien et toi. Okay, now next one is bonjour, comment allez-vous? What is comment allez-vous? Comment allez-vous is how are you? Okay, so the answer will be je vais bien, merci. Next one, au revoir monsieur. So answer will be au revoir et bientôt. अगर कोई आपको au revoir बोल रहा है, bye बोल रहा है, तो second person will also reply at same. Okay, next, quelle âge as-tu? So j'ai 10 ans. Yes. Où habitez-vous? J'habite à Nice or je m'appelle Nicolas. Is j'habite à Nice. Okay, nice. It's very easy. Okay, now complete. What you have to do? It's just simple. You have to write down the number names. अब ये आप खुद से कर लेंगे. यहाँ पे कात्र दिया हुआ है. It means 2 numbers पहले के आएंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे द से, then थ्रुआ, no, it's wrong. I also got confused. It's in the upward direction like this. Okay, so it will be the, trois, quatre, cinq, six. Okay, sept, huit, neuf, dix, 11 and 12. Very simple. Okay, now écoute et complete. Now listening part is not there. Okay, but still you can find out the answer. 1 के बाद 2 मिसिंग है, 3 लिखा है, सो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा. Ça va bien et toi? 4 मिसिंग है, 5 6. Je m'appelle Français, 7 8 9. J'ai un stylo 9, so the answer will be these, 11, 12. Okay, now in the next page, complete et jouer la situation. It means complete and enact the situation. 2 dialogues आपको दिए हुए हैं, आपको इन्हें fill up करना है. So number 1, if you can have a look, madame is given. So madame के लिए हम क्या greet करेंगे? It will be bonjour. Okay, bonjour madame. Comment vous appelez-vous? नाम पूछेंगे हम. ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वैलेरी एंड यहाँ पे दिया है ज, तो बीच में क्या आएगा? je m'appelle वैलेरी. एवू, je m'appelle, व्हाट्स योर नेम? जो भी आपका नाम है. मेरा नाम करिश्मा है, तो मैं अपना नाम करिश्मा लिख रही हूँ. ओके, ऑन डैश, डैश, व्हाट विल बी दी आंसर? विल बी enchanté. ठीक है, enchanté, दोनों ही enchanté, बिकॉज फेमिनिन है तो बोथ में हम डबल ई लगाएंगे. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. ओके, नाइ लाइक दिस. enchanté मतलब नाइस टू मीट यू. नेक्स्ट वन, डैश comment tu डैश, je डैश ल्यूड्यूक. अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हम इनफॉर्मल मैनर यूज़ कर रहे हैं, तो comment tu तापेल और इसके आगे क्या आएगा? सैल्यू. सो द आंसर विल बी comment tu t'appelles, je m'appelle Ludu. Apple s'il te plaît, apple s'il te plaît. What will be the answer? ये कह रहे हैं अपने नाम की स्पेलिंग को प्लीज़ स्पेल करो. अब आपको स्पेल कैसे करना है?
L U they O we E say. Etwa, je m'appelle, what's your name? करिश्मा. U dash tu, क्या आएगा? U मतलब where, तो आंसर होना चाहिए where do you live, so it will be où habite vous tu, so you will write down j'habite you can write down j'habite à Bhopal. Okay, like this you can do. Next one is écoute et observe. Okay, इसमें हमें क्या करना है, phonetics पे, मतलब आपके साउंड पे ध्यान देना है. सो आंसर विल बी comment ça va, ça va. comment allez-vous, je vais bien. comment tu t'appelles, je m'appelle Kevin. quel âge as-tu, j'ai 10 ans. où habites-tu, j'habite à Nice. Okay, just have a look. ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसे हमें क्या करना है. ठीक है, monuments and amusement park, castle, palace, cathedral, church, म्यूज़ियम, इन्हें हमें सेग्रीगेट करना है और इस तरह से लिखना है. नेक्स्ट वन आई टोल्ड यू नॉट टू डू बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 4th, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, रीड एंड कंप्लीट एनएस आइडेंटिटी कार्ड, इसका आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए. je m'appelle Anne Dupont, so what will be the noun will be Dupont, pronoun will be Anne, her age is these and her address is 14 rue du Cinéma, Paris. Like this. Okay, easy. So in the book only this much questions are there. Okay, now we will open the workbook. Now what is there in the workbook you will do by yourself. It's very easy. I am just guiding you and writing 2 answers of each question, then you will do it by yourself. Okay, now first one is je m'appelle lesson 2. This is a workbook. Number 1 is complete करना है आपको. ओके, डायलॉग्स दिए हैं एंड उसकी चॉइस आपको दी है, आपको इनमें से चूज़ करना है. इट्स ईजी. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू फर्स्ट 2, रेस्ट 3 you will do by yourself. Bonjour madame, comment allez dash, tu, vous or toi, what will come? comment allez-vous. Okay, it's vous. Next, je dash bien, je vais bien. bien et vous, बिकॉज फॉर्मल मैनर है तो वो ही यूज़ करेंगे हम. je vais bien merci. Okay, next one, dash Eric sa salut stylo, what will come? कभी भी स्टार्टिंग करते हैं तो या तो bonjour या salut से करते हैं. इनफॉर्मल मैनर है तो salut यूज़ करेंगे. comment ça va, ça va bien et toi. ओके, ठीक है, इजी है. नाउ CDE आप खुद से करेंगे, मैं इसकी PDF पे आपको सेंड कर दूँगी. écoute et complete la carte d'identité. अब écoute हमें लिसनिंग के लिए तो यहाँ पे है नहीं, आप एक बार चेक करिएगा. जिसके भी पास बेटा बुक है वो एक बार अपनी वर्कबुक में ऑडियो देखेंगे, बिकॉज उसमें ऑडियो इज़ गिवन. अगर ऑडियो है तो आप उसकी हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज़ इसमें आप अपना भर देना. द बॉय की जगह यू विल राइट योर सरनेम, योर नेम, योर एज एंड योर एड्रेस. ओके, RU का मतलब होता है स्ट्रीट, रोड, RUE. ओके, नेक्स्ट वन, third question, find the question. Now the answer given to you, you have to find out the question. Very easy. Ça va bien et toi, ça va merci. So what will be the question? It will be comment ça va. comment ça va. Okay, ça va bien et toi, ça va bien merci. Next one, dash je m'appelle Hélène et vous. It means he is telling the name.
sorry, she is telling the name. So now when the person is telling the name, what will be the question? And वो manner, it means formal manner use होगा. The question will be kamo वो zaple वो. What is your name? Kamo वो zaple वो. Okay. Now next answer is Jabita Pari. It means यहाँ पे question पूछा होगा where do you live? So what will be the answer question? Où habitez-vous? Okay, easy. C and D आप खुद से करेंगे. Okay. Now B is now enact a situation of your choice. अब आप एक काम करेंगे, अपनी मम्मा को या पापा को, दोनों घर पे होंगे, किसी को भी थोड़ा सा फ्रेंच सिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा. ओके. फॉर्मल मैनर, इनफॉर्मल मैनर आप उनसे डिस्कस करेंगे. फॉर्मल मैनर के जो डायलॉग्स मैंने आपको लिखवाए थे वो उन्हें बताएंगे. एंड देन दोनों आप सिचुएशन को इनैक्ट करेंगे. इट्स अप टू यू, आपको जो भी मैनर चूज़ करना है आप कर सकते हैं. एंड देन मुझे बताएंगे कि कैसा लगा. ओके. नाउ फोर्थ वन, écrire 5 mots avec les lettres de la boîte de lettres suivantes. Write 5 words with letters from the following letter box. Wow, it's very very nice. इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी 5 वर्ड्स जो हैं इनमें से ढूंढ के लिखना है. मैं एक वर्ड फाइंड कर पा रही हूँ. सो आई एम टेलिंग यू वन ओनली, स्टार्टिंग विथ एस. सो एस, A L U T. What will be the answer? It is salute. Okay, it's salute. Fine. So now can you find out the next one? One more. Okay, bon, B O N G O, we can take O again. U ac. So it will be bonjour. Okay, like this. Find the rest 3 और जितने आपको मिल सकते हैं ये आप कॉपी में वर्क करेंगे. ओके, आई वॉन्ट दिस वर्क इन योर नोटबुक. नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, écoute et colorez les nombres que tu attends. नाउ इसमें एक प्रॉब्लम है. अगेन लिसनिंग पार्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स को बोलेंगे एंड कलरिंग करेंगे. ये भी कॉपी में चाहिए मुझे. ओके. नाउ राइट इन लेटर्स द नंबर दैट यू डिड नॉट हियर. जो नहीं मिले उसको छोड़ दीजिए. ये वाला क्वेश्चन छोड़ेंगे. ए और फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन आई वांट इन योर नोटबुक. ओके. लास्ट वन, फाइंड द ऑड वन आउट. नाउ सम वर्ड्स हैव गिवन टू यू. इसमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन अगर मैं देखूँ तो मुझे इसमें कुछ नेम्स नज़र आ रहे हैं फ्रेंच के. केविन, ली, नीस, निकोल. इसमें से कौन सा नहीं है? आई थिंक नीस, बिकॉज नीस इज़ अ प्लेस. नेक्स्ट वन, बोंजूर, मेसी, बोंसोir, सैल्यू. नाउ बोंजूर, बोंसोir एंड सैल्यू इज़ व्हेन वी यूज़ टू ग्रीट समवन. मैसी हम कब बोलते हैं? थैंक यू. जब हमें किसी को रिटर्न में थैंक्स गिविंग करना है तो हम मैसी बोलते हैं. आई थिंक मैसी विल बी द ऑड वन आउट. द, नफ, कात्र, सीस. अब नंबर्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो द इज़ 2, नफ इज़ 9, कात्र इज़ 4 एंड सीस इज़ 6. सो आई थिंक नफ, बिकॉज नफ जो है वो ऑड नंबर है, बाकी जो है वो इवन है. ज, त्यूवु. त्यूवु में जो आ है दैट इज़ नॉट अ प्रोनाउन. रेस्ट वन आर द प्रोनाउंस. सो हम आ को करेंगे. आबिद, आज, मापेल, वे. अब इसमें क्या होगा? आबिद, आज, मापेल, वे. अगर हम देखें तो आबिद, मापेल और वे ये तीनों ही वर्ब्स हैं, बट आज इज़ नॉट अ वर्ब. ओके, तो आज जो होगा वो आउट होगा. नेक्स्ट वन, 7th. ये मैंने आपको बोला था होमवर्क. इफ़ यू रिमेंबर येस्टरडे आई टोल्ड अबाउट दिस कि मुझे आपका होमवर्क मैं पूछूंगी आपसे, और आपने आई होप ये सारी पिक्चर्स नेट पे फाइंड आउट करी होंगी और 2 लाइन्स अपनी कॉपीज़ में लिखी भी होंगी. नहीं किया है ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगी भी नहीं, आपको खुद से लिखना है. आइडेंटिफाई द इमेजेस एंड राइट द नेम. यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ योर बुक बिकॉज येस्टरडे वी हैव डन दिस. इसकी हेल्प लेके आप ये वाला क्वेश्चन
कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, ये आपको खुद से करना है। अब एक बार अच्छे से पूरी वर्कबुक को रिवाइज़ करिए। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर दोनों आपके कंप्लीट हो गए हैं। मुझे अभी तक एक भी कॉल नहीं आया है। आई वंडर कि सबको फ्रेंच इतनी अच्छी लग रही है, इतनी ईजिली आ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिल्ड्रन प्लीज़ डू मेक कॉल। अगर कॉल नहीं लगा पा रहे हैं आप मुझसे व्हाट्सएप में भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दैट, ओके। सो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स, बिकॉज जब तक डाउट्स आप नहीं पूछेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ओके, या कहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है। सो प्लीज़ डू सो। एक बार फिर से करेंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा लेसन नंबर 3, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड बहुत अच्छा खाइए, मम्मा की हेल्प करिए घर पे एंड एन्जॉय करिए, ओके। सो आवा अभियान तो